About the energy level. This is a new topic for us. The energy levels of an electron in hydrogen atom. So we have studied that the total energy of an electron in the nth state, in any stationary state, is given by En is equal to minus 13.6 over n square electron volt. So this is equation number 1. Now we'll start with if n is equal to 1. If n is equal to 1, substitute n in equation number 1. E1 E1 is equal to, this is minus 13.6 upon 1 square electron volt. You will have minus 13.6 electron volt. सो इसका मतलब ये हुआ कि जब आपका इलेक्ट्रॉन जो है, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, यू कैन सी इट इन फिगर नंबर 1 एंड दिस इज फिगर नंबर कॉरस्पॉन्डिंग फिगर नंबर 2. दिस इज फिगर नंबर 2 ऑफ NCERT. So if n is equal to 1, the energy of an electron in the ground state is minus 13.6 electron volt. So ये आप देख सकते हैं कि आपको मेंटल पिक्चर बनाना है कि ये जो है पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है और इसके किनारे जो इलेक्ट्रॉन यदि अपने ग्राउंड स्टेट में घूमता है, जब आप उसको मैथमेटिकली n इज इक्वल टू 1, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 होती है, तो उसकी जो एनर्जी होगी माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी. और ये स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगी वो इट्स कॉल्ड ग्राउंड स्टेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. अब दूसरे स्टेट में यदि हम चलते हैं, इफ n इज इक्वल टू 2, इफ n इज इक्वल टू 2 मीन्स अब आपको मेंटली ये देखना है कि एटम में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कहाँ होगी. सो इफ n इज इक्वल टू 2, देन दिस इज the electron will be in the second orbit, means this is called first excited state. So इन सब states को हम बोल देंगे these are all the excited states. These are all the excited states for an electron in the hydrogen atom, right? So these are all the excited state, and this is the ground state, right? So this is the ground state. This is the ground state of an electron in hydrogen atom. So I will put in place of n, I will write it as E2. This is minus 13.6 upon 2 square. It is equal to minus 13.6 upon 4, and this will be minus 3.40, minus 3.40 electron volt. इसका मतलब साफ है कि this is you can mark it as equation number 2, you can mark this as equation number 3. So this is the ground state. So this is the first excited state. So in the first excited state, the electron will have the energy. यदि इलेक्ट्रॉन इस घेरे में घूमता है, इस सर्कल में घूमता है, तो इस घूमते हुए इलेक्ट्रॉन के पास इतनी टोटल एनर्जी होगी. ये समझना है आपको यहाँ. और आप इस डायग्राम, एनर्जी लेवल डायग्राम से भी आप यहाँ देख सकते हैं एटम में उसकी सिचुएशन कहाँ होगी, और एनर्जी लेवल डायग्राम में यदि हम ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम यहाँ से सीख सकते हैं. आगे हम लिखते हैं कि इफ n इज इक्वल टू 3 मीन्स इलेक्ट्रॉन विल बी इन द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट. आप ब्लू सर्कल देख सकते हैं. आप इलेक्ट्रॉन यदि यहाँ चक्कर लगाता है तो उसके पास कितनी एनर्जी होगी. सो आई विल राइट नाउ दिस इज एज E3. दिस इज माइनस 13.6 अपॉन 3 square. Okay, this is minus 13.6 over 9, and if you will solve it, then it will be minus 1.51 electron volt. This is equation number 4. Means if the electron will revolve in this orbit, blue circle orbit, then it is a second excited state. This electron will have the energy minus 1.51 electron volts. So I mean it will go ahead. If n is equal to 4, then E4 energy in the fourth orbit will be minus 13.6 divided by 4 square. Okay, so this is minus 13.6 upon 16. So this is equal to minus of 0.85 electron volt. This is equation number 5. This means that if the electron will exist in this state, yellow आप सर्कल को देख सकते हैं, यदि इलेक्ट्रॉन यहाँ रिवॉल्व करता है
घूमता है पॉजिटिव न्यूक्लियस के किनारे, तो उसके पास टोटल एनर्जी इतनी होगी. ओके, सो we'll keep on discussing it. If n is equal to 5, then E5 is equal to minus 13.6 upon 5 square. It is minus 13.6 upon 25, and we will have this energy that is minus of 0.54 electron volt. This is equation number 6. So if similarly we'll go ahead, if n is equal to infinite, then E infinity is minus 13.6 upon infinity, the square is again infinity, then this energy is equal to 0. So at this point of time, that energy will become 0. Energy will become 0 means that this state will become unbound state. Unbound state का मतलब है, हमने डिस्कस किया था कि when this total energy will become positive, when this total energy will become positive, the electron will no longer move in the circular path. इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन है वो गोल घेरे में नहीं घूमेगा. ओके, electron is in the ground state normally at the room temperature की यदि हम बात करें तो जो इलेक्ट्रॉन है वो नॉर्मली ग्राउंड स्टेट में होता है. तो हम ग्राउंड स्टेट एनर्जी की यदि हम बात करें, then this is only minus 13.6 electron volt, and the energy of an electron in the first excited state where n is equal to 2, that is minus 3.4 electron volt. अब हमें ये समझना है कि यदि इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाना है तो उसको कितनी एनर्जी चाहिए होगी. देन एनर्जी रिक्वायर्ड टू गो फॉर एन इलेक्ट्रॉन to go from ground state to first excited state is this is equal to E2 minus E1. This means this is minus 3.4 electron volt minus 13.6 electron volt, right? Okay, so this is equal to minus 3.4 plus 13.6 electron volt. So plus 13.6, this is equal to, this energy is equal to 10.2. this energy is 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो आप यहाँ अंदाज़ा लगाइए, आप डायग्राम में देख सकते हैं कि यदि इलेक्ट्रॉन को इस स्टेट से इस स्टेट में जाना है तो उसको 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए. इट रिक्वायर 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी. अब यदि आप चलते हैं, हम आगे चलते हैं कि जो E3 है, यदि सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की हम बात करें जहाँ n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3 होगा, so energy in the second excited state is minus 1.51 electron volt. so अब आपको थोड़ा सा ये भी समझना, साथ साथ में ही हम समझ लेते हैं. यदि इलेक्ट्रॉन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, इस स्टेट में चला जाता है, और इस स्टेट में वो ज़्यादा देर नहीं रह सकता, वो उसको वापस फिर अपने ग्राउंड स्टेट में आना होता है. और यदि वो वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आता है, इफ़ इट विल कम बैक टू द ग्राउंड स्टेट वंस अगेन, तो वो क्या करेगा, इस 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी को लिबरेट कर देगा, एंड दिस एनर्जी विल कम आउट इन टर्म्स ऑफ फोटोन्स. सो वो एनर्जी जो है वो फोटोन के रूप में आएगी, और इनकी एनर्जी जो होगी वो सेम 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड. अब हम देखते हैं कि जो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है जिसमें n इज इक्वल टू 3 होगा, यदि आप अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ से ग्राउंड स्टेट से आप इस स्टेट में ले जाना चाहते हैं, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में ले जाना चाहते हैं, तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, तो वो क्या होगा, दिस एनर्जी इज E3 माइनस E1. सो दिस इज minus 1.51 minus 13.6 electron volt. Okay, so this is equal to minus 1.51 plus 13.6 electron volt. So this is equal to 12.09 electron volt. 12.09 electron volt. Now see here, यहाँ से आपको ये समझना है कि यदि आप अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ से इंटरेक्शन से किसी भी तरीके से आप एनर्जी देके यहाँ से
सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में ले जाते हैं तो आपको 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी की ज़रूरत होगी। हाँ, और सेकेंड एक्साइटेड स्टेट से यदि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो वापस फिर ग्राउंड स्टेट में आता है, देन इट विल अमिट द फोटोन। तो यहाँ से यदि वो वापस फिर ग्राउंड स्टेट में आएगा, इट विल लिबरेट द photon with energy 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर। ये आपको समझना है। और अब आपको लास्ट एग्जांपल देते हैं क्योंकि बाकी आप खुद समझ जाएंगे। दिस इज फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। नाउ इफ यू विल सी दैट आपको यदि इस इलेक्ट्रॉन को लिबरेट कर देना है, फॉर एग्जांपल कि बाकी जो आपके लिए होमवर्क हो जाएगा, यदि आप इस इलेक्ट्रॉन को लिबरेट करना चाहते हैं, आप इसको इसके जो सर्कल का चक्कर है या न्यूक्लियस के किनारे घूमने के जो प्रक्रिया है, इसे आप बाहर करना चाहते हैं। तो इसको हमने एनर्जी कंसेप्ट ऑफ एनर्जी को डिस्कस करते समय इस बात को डिस्कस किया था। द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव। सो नेगेटिव एनर्जी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन विल रिमेन बाउंड टू द न्यूक्लियस। सो इफ दिस एनर्जी विल बिकम पॉजिटिव बाय सम वे, देन इलेक्ट्रॉन विल लिबरेट फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ पॉजिटिव चार्ज। सो जो इलेक्ट्रॉन है वो लिबरेट हो जाएगा, वो फिर सर्कुलर ट्रैक में नहीं घूमेगा। तो उसके लिए आपको कॉमनली आप देख लीजिए कि आपको क्या करना पड़ेगा। सो when En is equal to infinite, then energy will become equal to zero. So to liberate the electron, to liberate an electron from न्यूक्लियस, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो एनर्जी कितनी चाहिए, आयनाइजेशन एनर्जी इसको हम बोलेंगे ई इन्फिनिटी माइनस ई वन। सो ई इन्फिनिटी इज जीरो माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो दिस इज इक्वल टू जस्ट 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। तो आप बड़े कॉमनली इस चीज़ को समझ सकते हैं कि यदि मान लो आपका, दिस इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन ने अपना न्यूक्लियस छोड़ दिया है, ये आपको सिंपल समझना है। तो आप ये देखें कि दिस इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू लिबरेट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू इन्फिनिटी। ओके, सो देन द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द पर्पज इज कॉल्ड द आयनाइजेशन एनर्जी। सो यदि मान लो कि उसको सेकेंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से उसको लिबरेट करना है, तो आप यहाँ देख लें, जैसे ग्राउंड स्टेट से यदि आपको इलेक्ट्रॉन को लिबरेट करना है तो आपको इतनी ही एनर्जी, टोटल एनर्जी को पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो आपको प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए। अब आप इसी कंसेप्ट को यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से यहाँ से इलेक्ट्रॉन को लिबरेट करना है जहाँ उसकी एनर्जी -3.40 है, तो आपको इतनी ही एनर्जी ऐड करनी पड़ेगी ताकि माइनस का साइन खत्म हो जाए। तो प्लस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए। यदि आपको सेकेंड एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को लिबरेट करना है तो यहाँ इसकी एनर्जी जो है वो -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो आप इतनी ही एनर्जी इसमें ऐड कर दीजिए तो इसका माइनस साइन चला जाएगा। तो यहाँ से यदि आपको इलेक्ट्रॉन को लिबरेट करना है तो आपको 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए। यदि आपको इस स्टेट से लिबरेट करना है तो प्लस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, 85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी की ज़रूरत होगी एंड द इलेक्ट्रॉन विल बी लिबरेटेड फ्रॉम दिस स्टेट। सो दिस इज ऑल अबाउट द एनर्जी लेवल्स। सो यहाँ आप एक बार फिर से देखें कि जब इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्स्ट ऑर्बिट में होता है, उसकी एनर्जी को हम ग्राउंड स्टेट, उसकी जो स्टेट होती है उसको ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, वहाँ उसकी एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। आप दूसरा घेरा देखें, जब इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 होता है और यदि इलेक्ट्रॉन इस घेरे में चक्कर लगाता है, सेकेंड ऑर्बिट में चक्कर लगाता है, तो उसकी एनर्जी -3.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। थर्ड के लिए -1.51 होती है। आप साथ में देखें, साथ में मज़ेदार बात यह कि आप देखें जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो बढ़ता चला जा रहा है, सो डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी लेवल इज गोज ऑन डिक्रीजिंग एंड व्हेन n विल बिकम इक्वल टू इनफाइनाइट, आफ्टर दैट ये आप जो ब्लूइश पोर्शन देख रहे हैं, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें जो एनर्जी लेवल्स हैं वो कॉन्टीन्यूअस है, मीन्स ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी आर रिक्वायर्ड फॉर एन इलेक्ट्रॉन, आर अवेलेबल फॉर एन इलेक्ट्रॉन। इस रीजन को बड़े ध्यान से देखिए। अनबाउंड आयोनाइज्ड एटम जो है उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी भी एनर्जी को गेन कर सकता है। ये जो ब्लूइश रीजन है वो यही बताता है। और जब तक वो शेल्स में घूमेगा तो सभी एनर्जी उसके लिए अलाउड नहीं होंगी,
Only discrete energy levels will be required for this. So this is all about the concept of energy level of an electron in hydrogen atom. Thank you.